दी ऑर्डिनरी एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है विच इज़ वेल रिप्यूटेड एंड क्वाइट अफोर्डेबल, बट फिर क्या वजह है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट्स विटामिन सी रेंज। पहले दी ऑर्डिनरी के टोटल 8 विटामिन सी प्रोडक्ट्स थे, 4 प्रोडक्ट्स ऑफ प्योर विटामिन सी दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड एंड 4 प्रोडक्ट्स ऑफ विटामिन सी डेरिवेटिव्स। बट फिर दी ऑर्डिनरी ने 2 vitamin C products discontinue कर दिए and now we are left with total 6 products, out of which 3 products are pure vitamin C that is L-ascorbic acid and 3 products are vitamin C derivatives. Let's discuss pros and cons of each vitamin C product and then you decide कि आपको अपने लिए लेना चाहिए या नहीं. I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-backed skincare, haircare and beauty products reviews based on their Inky list and my experience. Before starting, please like this video and subscribe my channel. Before going into details of the ordinary vitamin C range, first let's discuss what is vitamin C और इसकी क्या importance है in our skincare routine. Vitamin C, otherwise known as ascorbic acid, is water soluble. It's a great antioxidant and UV protection booster. Vitamin C हमारी skin को free radical से बचाता है और sun damage remove करने में help करता है. This is why it's a great idea to use your vitamin C serum in the morning under your sunscreen for even better protection. अगर आपके विटामिन सी सीरम में विटामिन ई भी हो then it doubles the photo protection properties of vitamin C. But wait, it gets even better जब विटामिन सी और ई के साथ उसमें फेरोलिक एसिड भी मौजूद हो. So this trio of vitamin C plus vitamin E and ferulic acid is really effective if you are into protecting your skin from UV rays. The second advantage of ascorbic acid is to boost collagen. इसी वजह से ये हमारी स्किन को फर्म और रिंकल फ्री रखने में हेल्प करता है. और ascorbic acid का थर्ड बेनिफिट है कि ये कुछ हद तक हाइपरपिगमेंटेशन को भी इम्प्रूव करता है. So see how beneficial ascorbic acid is when it comes to skincare, but skincare products में ascorbic acid formulate करना इतना भी आसान नहीं because ascorbic acid is very unstable. It easily degrades in presence of light and heat. इसे stable रहने के लिए and to get into your skin acidic pH की ज़रूरत होती है. फिर ferulic acid भी vitamin C को stabilize रखने में help करता है. That is why an active form of vitamin C, ferulic acid, is also added to improve its stabilization and penetration. एक और अहम चीज है विटामिन सी की कंसंट्रेशन. यू नीड एस्कॉर्बिक एसिड इन कंसंट्रेशन बिटवीन 10 to 20% टू वर्क. अगर 20% से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी देन इट वुड कॉज स्किन इरिटेशन. सो बिफोर डिस्कसिंग 3 products of the ordinary vitamin C which contain active form that is ascorbic acid, let's recap on which basis we will judge these serums. To get benefits of ascorbic acid as an antioxidant, collagen booster and to improve hyperpigmentation, ascorbic acid की concentration within 10 to 20% होनी चाहिए और उसमें ferulic acid भी मौजूद होना चाहिए to improve its stabilization and penetration. So first is vitamin C suspension 23% plus hyaluronic acid spheres. आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑप्टिमल रेंज से ज़्यादा परसेंटेज है एस्कॉर्बिक एसिड की, दैट इज़ 23%. सो ये 23% एस्कॉर्बिक एसिड आपके लिए बेनिफिशियल होने की बजाय इरिटेटिंग ज़रूर हो सकता है. एंड व्हेन यू चेक इट्स इंकी लिस्ट, इसमें कोई स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है लाइक फेरोलिक एसिड एंड विटामिन ई, सो इट्स नॉट गोना गिव यू मच एडवांटेज. इट ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमेक्टेंट्स लाइक सोडियम हाइलुरोनेट. ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा बट आई डोंट थिंक सो कि एस्कॉर्बिक एसिड वाला कोई खास बेनिफिट मिल पाएगा. फिर इसका टेक्सचर भी ग्रीनी है जिससे स्किन में एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगता है. सो आई वुड नॉट एडवाइस यू कि आप ऐसे विटामिन सी में इन्वेस्ट करें जिसे ना तो आपको लगाने में मजा आए और ना ही आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाइड हों. सेकेंड इज विटामिन सी सस्पेंशन 30% इन सिलिकॉन्स. ये विटामिन सी भी पहले विटामिन सी सस्पेंशन जैसा है बट विद 2 एक्सेप्शंस. एक तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की कंसंट्रेशन और ज़्यादा है दैट इज 30%, सो इट वुड बी मच मोर इरिटेटिंग देन दैट. दूसरा, इसमें ह्यूमेक्टेंट्स की जगह सिलिकॉन्स है तो उसकी ग्रेनी टेक्सचर की बजाय इसका टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ तो होगा बट अगेन इसमें भी विटामिन ई और फेरुलिक एसिड नहीं है. So the basic stabilizing ingredients of ascorbic acid are missing. So I'm not confident about the performance of this vitamin C too. और कुछ लोग इस vitamin C के साथ pilling की भी complain करते हैं. So I would advise you to skip this too. Third is 100% L-ascorbic acid powder. This is pure form of vitamin C in powder form. This powder vitamin C is very tricky. पहली बात तो ये है कि ये ऑप्टिमल रेंज दैट इज 10 to 20% से बहुत ज़्यादा है. सो रिस्क ऑफ स्किन इरिटेशन इज मच ग्रेटर. दूसरा, इसको बनाने के लिए भी यू वुड नीड अ सेपरेट सीरम
जो आप इस पाउडर में मिक्स करेंगे, लाइक हाइलुरोनिक एसिड, और फिर इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट भी नहीं है, तो इसके लिए आपको दी ऑर्डिनरी रेस्वेरेट्रोल प्लस फेरुलिक एसिड सीरम भी लेना पड़ेगा, और फिर रेशियो में कुछ ऊंच नीच हो गई तो भाई फिर भी प्रॉब्लम। सो दिस पाउडर विटामिन सी इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। वैसे तो आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन एनी दी ऑर्डिनरीज विटामिन सी, बट अगर आप फिर भी लेना चाहें तो ये वो पहला विटामिन सी होगा जो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज डोंट बाय इट। फिर दी ऑर्डिनरी का फोर्थ प्योर विटामिन सी था एस्कॉर्बिक एसिड 8% प्लस अल्फा आर्ब्यूटिन 2%, जो अल्फा आर्ब्यूटिन की वजह से शायद मैं आपको कहती कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट दी ऑर्डिनरी ने अपना ये विटामिन सी खुद ही डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मुलेशंस ऑफर्ड बाय दी ऑर्डिनरी। दी ऑर्डिनरी एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव्स फॉर्मुलेशंस भी ऑफर करता है। पहले ये भी 4 प्रोडक्ट्स थे, बट फिर दी ऑर्डिनरी ने मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट 10% डिसकंटिन्यू कर दिया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव्स। इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको विटामिन सी डेरिवेटिव्स के बारे में एक जनरल बात बताती चलूं कि विटामिन सी का कोई भी डेरिवेटिव हो उसे स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है, और फिर ये अपना इफेक्ट देते हैं। दैट इज वाई डेरिवेटिव्स की एफिकेसी एस्कॉर्बिक एसिड के मुकाबले में कम होती है। विटामिन सी डेरिवेटिव्स नो डाउट स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू एस्कॉर्बिक एसिड, बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि इनकी एफिकेसी लेस प्रूवन है इन स्टडीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इन विट्रो स्टडीज, यानी कि वो स्टडीज जो सिर्फ लैब में परफॉर्म हुई हैं बट नॉट ऑन रियल ह्यूमंस, उसके अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव स्किन में पेनिट्रेट भी कर सकते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट किस हद तक, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इन वीवो स्टडीज जो रियल ह्यूमंस पर होती हैं दे आर स्टिल नीडेड। तो चलिए इन डेरिवेटिव्स को भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें सिर्फ उस डेरिवेटिव के उस एडवांटेज को हाईलाइट करूंगी जो इन वीवो स्टडीज में भी प्रूवन है। फर्स्ट इज एस्कॉर्बिक ग्लूकोसाइड सॉल्यूशन 12%। ये विटामिन सी की स्टेबल फॉर्म है, ऑल्दो इन विट्रो स्टडीज में तो एस्कॉर्बिक ग्लूकोसाइड के तीनों बेनिफिट्स प्रूवन है, बट इन वीवो स्टडीज में जो ह्यूमंस पर हुई हैं उसमें सिर्फ इसका फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रूवन है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फोटो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट विद एन एक्टिव एंटी एजिंग कंपोनेंट, सो यू कैन बाय दिस विटामिन सी सीरम। आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये सीरम यूज़ किया हुआ है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे कोई स्किन ब्राइटनिंग बेनिफिट नज़र नहीं आया। दिन में लगाकर इसे सनस्क्रीन के साथ पेयर करने से नो डाउट एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट शायद मिला भी हो, बट जब मैंने इसे बाय किया था तो इसका कलर भी बता रहा था कि इट्स ऑलरेडी पार्शली ऑक्सीडाइज, बिकॉज जिन ऑनलाइन सोर्सेज से हम खरीदते हैं वो कितना टाइम स्टोर होकर हम तक पहुँच रहा है वी डोंट नो। सो आई वुड एडवाइस यू कि या तो आप पाकिस्तानी विटामिन सी ही परचेज करें या फिर खुद इसे पाकिस्तान से बाहर किसी ऑथेंटिक स्टोर से खरीदें। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिल टेट्राआइसोपाल्मिटेट सॉल्यूशन 20% इन विटामिन एफ। एस्कॉर्बिल टेट्राआइसोपाल्मिटेट विटामिन सी का स्टेबल और ऑयल सॉल्युबल डेरिवेटिव है, विच मीन्स इट विल एक्टिवली पेनिट्रेट डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन। अकॉर्डिंग टू इन विट्रो स्टडीज ये विटामिन सी के तीनों इफेक्ट्स देगा, बट अकॉर्डिंग टू इन वीवो स्टडी इसका स्किन लाइटनिंग इफेक्ट भी कुछ हद तक प्रूवन है। सो अगर आप अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गेट रेडिएंट स्किन, तो फिर आप इस विटामिन सी सीरम को भी ट्राई कर सकते हैं। एंड द लास्ट विटामिन सी डेरिवेटिव जो दी ऑर्डिनरी ऑफर कर रहा है वो है इथाइलेटेड एस्कॉर्बिक एसिड 15%। ये विटामिन सी की स्टेरिफाइड फॉर्म है, अ मिक्सचर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एंड इथाइल ग्रुप। ये कॉम्बिनेशन इस कंपोनेंट को बहुत स्टेबल बनाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाटर और ऑयल दोनों में सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये फॉर्म ऑफ विटामिन सी भी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू इन वीवो स्टडीज ये भी प्रूवन है कि स्किन पिगमेंटेशन को लाइट करता है। सो अगर आप अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करना चाहते हैं और स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, देन यू शुड चूज दिस वन। So this was all about the Ordinary's vitamin C formulations. So summary ये है कि विटामिन सी पाउडर तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, और अगर आप एडवांस यूजर्स हैं विटामिन सी के तो फिर ही आप इसके बाकी 2 प्योर फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी को ट्राई कर सकते हैं। बट फेरुलिक एसिड ना होने की वजह से और ऑप्टिमल रेंज से ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसका कोई भी प्योर विटामिन सी यूज़ करें। बट अगर आप न्यू यूजर्स हैं विटामिन सी के या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप दी ऑर्डिनरी के विटामिन सी डेरिवेटिव्स ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका मेन फोकस हाइपर पिगमेंटेशन को कम करना है, स्किन को इवन टोन करना है विद एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, then you can go for ethylated ascorbic acid 15% or ascorbyl tetraisopalmitate solution 20% in vitamin F.
बट आई डाउट कि ये दोनों विटामिन सी डेरिवेटिव्स शायद ही आपको पाकिस्तान में कहीं से मिल सकें। बट आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देन डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब। बाय।